Good evening and welcome to the Thursday edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. My name is Rajesh Lake and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम हाजिर हैं अर्थनीति, कारोबार और शेयर बाजार से जुड़ी हुई ताजे खबरों को लेकर। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं राजेश लेख। Finance Minister Nirmala Sitharaman announces 12 key stimulus measures to boost the COVID-19 hit economy. Equity benchmarks snap 8 sessions winning rally. Sensex closes at 43,357. Nifty settles at 12,691. And rupee weakens 27 paise against the US dollar. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कोविड-19 से प्रभावित देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 12 प्रमुख प्रोत्साहन उपायों की घोषणा की। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 8 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थमा। सेंसेक्स 43,357 पर फिसला, निफ्टी 12,651 हुआ दर्ज और अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 27 पैसे कमजोर हुआ। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले हम आमंत्रित करें आज की खबरों पर ऑनलाइन चर्चा के लिए जाने माने अर्थशास्त्री और पीएसडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर एस.के. शर्मा जी को। डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। वेलकम डॉक्टर शर्मा। जी शुक्रिया, थैंक यू। Okay, we move on with the main headline story now. Finance Minister Nirmala Sitharaman today announced 12 key stimulus measures to boost the economy, saying that it is emerging strong amid the COVID-19 pandemic as key parameters of the economy are in the positive trajectory. She said these stimulus measures announced under the Atmanirbhar Bharat 3.0 will provide a boost to employment, agriculture, infrastructure, manufacturing, housing and research and development and COVID-19 vaccine in the country. Addressing the press briefing in New Delhi today, the Finance Minister said these announcements are in line with the earlier stimulus packages which were announced to effectively deal with the effect of COVID-19 pandemic. She said the size of the stimulus being provided by the government as part of the 12 announcements amounts to 2,65,000 crore rupees. She added that these Atmanirbhar Bharat stimulus measures cumulatively amounts to 15% of the GDP. Informing about the state of the economy, Ms. Sitharaman said rise in PMI index, energy consumption, GST collection, bank credit, FPI investment shows that India's economy is doing better. She said market capitalization and forex reserves are at an all-time high, which is a positive indicator. Giving details of the progress made under the Atmanirbhar Bharat Abhiyan, she said the measures taken under the Abhiyan resulted in good results. She informed that 28 states and union territories have been brought under the national portability of ration cards from the 1st of September of this year. She said portability of ration cards benefited around 69 crore beneficiaries who can now pick the food grains from any fair price shop in any state. She further informed that more than 1,43,000 crore rupees have been sanctioned to the farmers through Kisan Credit Card. She added that 25,000 crore rupees have been disbursed for providing capital funding to farmers through NABARD. Dr. Sharma, the Finance Minister's Atmanirbhar Bharat package did provide boost to sectors in pocket, but failed to excite the market, which we will be giving you the details of later. The BSE's 30-share Sensex snapped 8-session winning streak and dropped 237 points. Do you think more could have been done, or is this enough? And perhaps an out-of-the-box thinking is required to revive
the animal spirits and get the economy back on the growth trajectory? Yes, our finance minister has announced very bold economic reforms, and this is the Atmanirbhar Bharat Abhiyan 3.0. And it will have a multiplier effect on the economic growth trajectory through the enhanced demand scenario, then job creation, increased private investments, then increase in exports, and revival of the other economic indicators. Because now the economy is now on the recovery mode, and we are expecting that the economy will enter in the positive trajectory sooner than later. Earlier, it was expected that the economy may be in the downturn and in the negative trajectory for many quarters, but on the back of various reforms undertaken by the government during the last 7-8 months, and the stimulus packages announced during the last few quarters, these are very, very effective. And along with today's announcement of the bold economic reforms, I believe the economy is going to back on track very soon. And we will see the positive growth in the, I believe, in the next third quarter of the current financial year. डॉक्टर शर्मा, यदि हम इसे ऐसे समझें कि 12 प्रमुख क्षेत्र जिनमें बढ़ावा देने के लिए ताजा उपाय किए गए हैं वित्त मंत्री की ओर से, भारत सरकार की ओर से, वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि जो पीएमआई सूचकांक है, उसके अलावा ऊर्जा खपत के आंकड़े हैं, जीएसटी संग्रह हुआ है, बैंक क्रेडिट है, और उसके अलावा जो विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं उनका जो भारत में पूंजी का लगातार निवेश हो रहा है, वह दर्शा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था अब ऊपर की ओर तेज गति से चलने लगी है। जो आज जिन क्षेत्रों की बात की गई है उसमें है कृषि है, उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर है, निर्माण है, हाउसिंग है और R&D है। आपको किन क्षेत्र में लग रहा है कि जो नए उपाय किए गए हैं आत्मनिर्भर भारत 3.0 योजना का, उसमें किन क्षेत्रों में सबसे तेज गति से हम वृद्धि देखेंगे और सबसे पहले कहां बढ़त हमें देखने को मिल सकती है? देखिए, जो सरकार ने अनाउंस किया है, एक तो सबसे ज्यादा जो मेरे को लग रहा है कि जो इफेक्टिव जो डिमांड बूस्टिंग रहेगा, वो जो पीएम आवास योजना के लिए जो सरकार ने अनाउंसमेंट किए हैं कि भी 18 लाख जो हाउसेज हैं वो कंप्लीट किए जाएंगे और 12 लाख के लिए जो ग्राउंड वर्क शुरू हो जाएगा, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसमें इस अनाउंसमेंट से जो कोर सेक्टर्स हैं जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, इनमें काफी तेजी आएगी, क्योंकि जैसे ही डिमांड रिवाइवल आएगा, जैसे इन सेक्टर्स में वापस गति आएगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी। क्योंकि जब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज इंक्रीज होंगी, जब स्टील की डिमांड बढ़ेगी, जब सीमेंट की डिमांड बढ़ेगी, तो ओवरऑल जो मल्टीप्लायर इफेक्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और इकोनॉमी के ऊपर जो है वो काफी विजिबल रहेगा और इससे इकोनॉमिक एक्टिविटी में तेजी आएगी। तो एक बहुत ही बड़ी घोषणा है सरकार की। एक तो इससे जो हमारा जो अफोर्डेबल हाउसिंग का जो एक सपना है उसके ऊपर भी हम आगे बढ़ रहे हैं, और दूसरा जो इकोनॉमी डाउन टर्न में थी उसको उभारने के लिए हम वापस इतना प्रयत्न कर रहे हैं कि ये इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट काफी अच्छा फायदेमंद रहेगा और इकोनॉमी एक अच्छे ट्रैजेक्टरी में एंटर करेगी। और दूसरा जो सरकार ने स्कीम एक्सटेंड कर दी है, जो कि ECLGS स्कीम जो है, जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है जो सरकार की, उसको 31 मार्च तक एक्सटेंड कर दिया गया है, 31 मार्च 2021 तक। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे जो एक तो जो इस स्कीम का फायदा नहीं ले पाए उनके लिए एक अच्छा प्रोविजन बन गया है कि उनको कुछ और महीने मिल गए हैं कि वो अपना इसका फायदा ले सकते हैं। और दूसरा जो सरकार ने अनाउंस किया है कि जो टेस्ट सेक्टर्स हैं जिनके लिए उनके लिए भी जो क्रेडिट गारंटी सपोर्ट उनको दी जाएगी, और ऐसे 26 जो सेक्टर्स हैं वो सरकार ने आइडेंटिफाई किए हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा ये प्रावधान रहेगा कि वो इस स्कीम को अवेल कर सकते हैं और अपना जो फाइनेंशियल्स हैं उनको अच्छे से वो सेटल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसके अलावा सरकार ने जो अनाउंसमेंट किए हैं, जैसे कि एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के लिए सरकार ने घोषणा की है कि सरकार खुद कंट्रीब्यूट करेगी, 12% प्लस 12% सरकार की तरफ से रहेगा, जिसमें कि अगर 1000 तक एम्प्लॉइज हैं तो 12% प्लस 12% रहेगा, और 1000 से अगर ज्यादा है तो 12% रहेगा, और 2 साल के लिए सरकार इसमें सपोर्ट करेगी। एक बहुत ही डिमांड बूस्टिंग मेजर है। इससे
इकोनॉमी में एक चौतरफा जो हम कहते हैं कि एग्रीगेट डिमांड का बढ़ना, जिससे कि एक तो एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होने से डिमांड बढ़ेगी, और दूसरा जो लोगों के इनकम लेवल्स बढ़ेंगे उससे भरपूर फायदा होगा। तो ये ओवरऑल जो सरकार की घोषणाएं हैं वो बहुत ही इंटरलिंक्ड है, और जो बेसिक ऑब्जेक्टिव है वो डिमांड क्रिएट करना है। तो डिमांड क्रिएट होने से, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज इस समय पे डिमांड है, अगर हम डिमांड क्रिएट कर पाते हैं तो हमारी जो रिफॉर्म्स हैं, जो सरकार ने रिफॉर्म्स पीछे के 7-8 महीनों में किए हैं, ये बहुत ही बोल्ड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं, और इनसे इकोनॉमिक ट्रैजेक्टरी जो है काफी ऊंचाई तक जा सकती है। बस हमें एक डिमांड बूस्टिंग मेजर्स लेने हैं। जैसे कि IMF के प्रोजेक्शंस में भी अगर आप देखेंगे, आने वाले 5 साल में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो सबसे ज्यादा, जो टॉप 10 इकोनॉमीज है, सबसे ज्यादा एस्टिमेट की गई है। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी भारत के ऊपर काफी ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो हमारे पास इस टाइम पे जो भी मेजर्स हैं, जो डिमांड बूस्टिंग मेजर्स हैं, तो उससे हम अपनी इकोनॉमी को वापस एक फास्ट मूविंग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी में लेने की हमारे पास समर्था है। Dr. Sharma, there is a plan for an additional outlay of rupees 1,000 crore for the Prime Minister Garib Kalyan Rozgar Yojana in the current financial year. This is going to give boost to the rural economic growth that you are talking about. And this is included in the FN's stimulus measures. Yes, all these schemes are part of the welfare-inducing measures, because now at the rural level, at the village level, we need to boost the living standards of the people, and along with the demand-creating measures. So all these schemes are very much interlinked, and the objective is same, that we have to create demand and we have to revive the economy. We have to rejuvenate the economy from the downturn caused by the daunting impact of COVID-19. So going forward, I believe all these schemes are going to benefit the economy from the ground level, because there are schemes for the welfare of the people, there are schemes for the welfare of the farmers, there are schemes for the welfare of the small businesses. All these schemes are going to create a good ground for the from the rural level enterprises and rural level demand and rural level farm enterprises. So all these schemes in collaboration will give a big boost to the overall economic trajectory of the country. Dr. Sharma, today the Finance Minister also extended that 5-year production-linked incentives scheme to 10 more sectors with a total allocation of roughly about rupees 1.46 lakh crores or so. And this, I believe, is being done to take on China. Yes, I believe we have to boost our export growth trajectory also, because we have to become competitive in the exports, because our imports, particularly from China, were increasing during the last many years. So trade deficit is also increasing. So at this juncture, when there is a global market opportunity and we have capabilities, we are very good in the ease of doing business, and we have increased our level of ease of doing business in the global charts, and we have reduced the cost of doing business also, and the focus of the government is to make enterprises more and more competitive. So at this juncture, the specialized schemes like production linked scheme, which the government announced yesterday, is very, very effective, and it will go a long way to boost the competitiveness of the exporters and make them competitive in the international market as well as in the domestic market for the domestic manufacturers, to create a level playing field so that they are able to combat the impact of unwanted imports from China. Okay. Dr. Sharma, this scheme is also very, very effective, and this will increase the competitiveness of our enterprises in the domestic as well as in the international market. डॉक्टर शर्मा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण जो कह लें पहल की गई है, वो है राशन कार्ड की पोर्टेबिलिटी। अब देश के 28 राज्यों और संघीय क्षेत्र प्रदेशों में कर दी गई है। इस पर हम आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, लेकिन अभी नहीं, एक छोटे से विराम के बाद किस रूप में यह कदम देश को आगे बढ़ाने में और लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराने में सहायक होगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया, लेकिन एक छोटे से श्रोताओं विराम के बाद बने रहिए हमारे साथ। बड़े भैया, इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए।
अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन मौजूद हैं जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर SP शर्मा। डॉक्टर शर्मा, आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत पोर्टेबिलिटी की प्रक्रिया राशन कार्ड की शुरू कर दी है पूरे देश में। यह एक बहुत बड़ा कदम साबित होगा। अब कहीं के भी नागरिक हों, उन्हें खाद्यान्न अपने राशन कार्ड पर मिल सकेगा। देश में कहीं भी किस रूप में यह लाभ पहुंचा सकेगा लगभग 69 करोड़ यानी लगभग 70 करोड़ लाभार्थियों को? जी बिल्कुल, क्योंकि जो जितनी भी हमारी कल्याणकारी योजनाएं हैं, चाहे वो जब से ये शुरू हुआ है, जैसे पहले हमने आधार कार्ड का प्रचलन किया और उसके बाद अभी राशन कार्ड के ऊपर हमारा एक पुरजोर फोकस है, तो ये सभी योजनाएं जो हम एक ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की बात करते हैं कि भारत एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी बनने जा रहा है और भारत का जो पहले भी ग्रोथ रेट बहुत अच्छा रहा है, काफी दशकों से हम इस फोकस में है कि हमारी जो ग्रोथ रेट है वो एक अच्छा सस्टेनेबल ग्रोथ ट्रैजेक्टरी हम अचीव कर पाए, तो उसी के संदर्भ में वेलफेयर क्रिएट होना भी बहुत जरूरी बन जाता है। तो सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, खासकर जो गरीब वर्ग के लिए, खासकर जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप्स हैं उनके लिए, तो ये योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाती हैं एक इंक्लूसिव ग्रोथ ट्रैजेक्टरी क्रिएट करने के लिए और जो ग्रोथ के साथ साथ जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज हैं उनको बूस्ट अप करने के लिए। तो मैं समझता हूं कि ये योजनाएं आने वाले टाइम में भारत की जो ग्रोथ है, जो हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में एक फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी बनने जा रही है, तो उसको और सस्टेन करने के लिए हेल्प करेंगे। एक स्ट्रांग ग्रोथ ट्रैजेक्टरी अचीव करने के लिए हमारे पास ऐसी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो भी होना बहुत जरूरी बन जाता है। तो सरकार का जो फोकस है वो एक चौतरफा विकास, मतलब एक इंक्लूसिवनेस से लेकर एक स्ट्रांग नी के साथ हम आगे अपना जो ग्रोथ है उसको सुदृढ़ करना चाहते हैं। आइए खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। अक्टूबर महीने में देश में खुदरा मुद्रास्फीति की दर बढ़कर 7.61% पर पहुंच गई, जो पिछले 9 महीनों के दौरान अपने सर्वोच्च स्तर पर है। सरकार की ओर से आज जारी आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। कहा गया है कि मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के महंगे होने से खुदरा मुद्रास्फीति में यह बढ़ोतरी हुई। दूसरी ओर देश के औद्योगिक उत्पादन संबंधी आंकड़े आए हैं सितंबर महीने के, और IIP नंबर में वार्षिक आधार पर सितंबर महीने में 0.2% की वृद्धि हुई है। डॉक्टर शर्मा, 9 महीने के उच्चतम स्तर पर खुदरा मुद्रास्फीति पहुंची है। कितनी चिंता की ये बात है, ये हम समझना चाहेंगे। क्या भारतीय रिजर्व बैंक है इसे ध्यान में रखते हुए, हालांकि RBI की ओर से पहले भी चेतावनी जारी की गई है कि हमें ध्यान देने की जरूरत है, किन अर्थों में ले रहे हैं इस आंकड़े को आप? देखिए, जो ये रिटेल इन्फ्लेशन है, इसके बढ़ने के लिए जो हम मुख्य कारण जो हम समझते हैं, एक तो जो पीछे थोड़ा डिस्ट्रप्शन रही है, जो आप कह लीजिए कि जो किसान बिल जो आए हैं उनकी वजह से कुछ ऐसे एजिटेशंस भी हुए जिस वजह से जो सप्लाई साइड से थोड़ा डिस्ट्रप्शंस गई हैं फार्म सेक्टर की तरफ से, तो ये टेम्परेरी है। आने वाले टाइम में जैसे ही ये सप्लाई एड्रेस होगी, सप्लाई स्मूथ हो जाएगी, तो जो सब्जी भाजी के जो दाम है, जो भी खासकर जो वेजिटेबल प्राइसेस हैं, जो फ्रूट्स के प्राइसेस हैं, उनमें काफी तेजी आने की वजह से जो रिटेल इन्फ्लेशन है, जो CPI इन्फ्लेशन है, वो इंक्रीज हुआ है। तो ये टेम्परेरी है। जो इन्फ्लेशन है वो कुछ ही टाइम में स्मूथ हो जाएगा जैसे जैसे सप्लाई इश्यूज एड्रेस होंगे। जैसे अभी जो खरीफ क्रॉप्स हैं वो मार्केट्स को टच कर चुकी हैं और मार्केट्स में उनका वितरण भी हो रहा है। तो आने वाले टाइम में जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं वो अच्छे से एड्रेस होंगे और इन्फ्लेशन जो है वो वापस अपने नॉर्मल ट्रैजेक्टरी में आ जाएगा। आइए चलें शेयर बाजार की ओर। सबसे पहले घरेलू शेयर बाजार। घरेलू शेयर बाजार में पिछले 8 सत्रों से जारी तेजी का सिलसिला आज थम गया।
अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कमजोरी के रुख के बीच घरेलू शेयर बाजार पर भी बिकवाल आज हावी रहे। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों में लिवाली भी देखने को मिली है। बिकवाली के दबाव में आज प्रमुख सूचकांक 0.5% के आसपास घाटे में रहे। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स कारोबार के अंत में 236 अंक यानी 0.54% लुढ़ककर 43,357 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 58 अंक यानी 0.46% की गिरावट लेकर 12,691 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजारों की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर दिखा है। निवेशकर्ताओं की दिलचस्पी बनी रही। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.5% लाभ के साथ बंद हुआ। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.2% की वृद्धि हुई। Equity benchmarks today snapped winning rally of 8 straight sessions and closed with losses of around 0.5%. The key domestic indices fell amid negative global cues. The Sensex declined 236 points or 0.54% to settle at 43,357. The NSE Nifty 50 index also slipped 58 points or 0.46% to settle at 12,691. On the other hand, the broader market at BSE surged, outperforming the Sensex. The BSE Mid-Cap Index rose 0.5% and the BSE Small-Cap Index jumped 1.2%. In the Sensex pack, shares of 13 companies climbed while 17 logged losses. Hindustan Unilever was the top gainer as it climbed 2.9%, followed by ITC, which gained 1.4%. Larsen & Toubro surged 1.3% and Bajaj Finserv Limited climbed 1.1%. On the other hand, SBI Bank lost 3.2%, Kotak Bank declined 2.9%, IndusInd Bank fell 2.4% and NTPC tumbled 2.3%. In sectoral indices, 11 out of 19 sectors appreciated. In gainers, shares of fast-moving consumer goods appreciated 1.4%, capital goods sector gained 1.3%, and the industrial rose 1.1%. On the other hand, Bankex plunged more than 2%, while energy and utilities fell 0.7%. The overall breadth of the BSE trade was positive as 1,550 shares climbed, 1,146 shares declined and 190 remained unchanged. तो रुपए की स्थिति पर ध्यान दें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया आज 27 पैसे कमजोर हुआ, 74 रुपए 65 पैसे के स्तर पर चला गया। घरेलू बाजार में कमजोरी के रुख से रुपए में गिरावट आई है। उधर दुनिया की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की स्थिति दर्शाने वाले डॉलर इंडेक्स में 0.13% की कमी देखने को मिली और ये अंतर्दिवसीय कारोबार में 92.93 के आसपास बना रहा। Quickly, Dr. Sharma, do you think the muted market reaction was due to the sharp run-up in the recent times, which has factored in all the positives? This is important. Have the markets factored in all the positive, even as the finance minister's package would boost productivity in the economy going forward? I think now the markets will see the revival of the GDP numbers, and Q2 numbers are expected on last working day of November. So I believe going forward, the performance of the markets will depend upon the firstly the numbers, GDP numbers, and the other economic indicators, and second, how the recovery is taking place in the global markets, the effect of coronavirus and the number of cases at the global level. So these will be the factors to watch going forward to check the markets volatility and further upside in the market. जी, आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले नजर डालते हैं एशियाई शेयर बाजार पर, जहां जापान को छोड़कर अन्य स्थानों पर बिकवाल हावी रहे। दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.4% घाटे में रहा। हांगकांग का हिंग सिंग 0.2% लुढ़क गया। सिंगापुर का स्टेट्स नाइम्स इंडेक्स और चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स दोनों सूचकांक 0.1% नीचे आ गए। उधर निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से जापान का निक्केई 225 सूचकांक 0.7% बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपीय बाजारों की ओर चलें तो समाचार तैयार किए जाने तक वहां बिकवाली दिख रहे थे। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 0.6% नीचे चल रहा था। जर्मनी का डैक्स 1% और फ्रांस का CAC 40 1.1% नीचे
कारोबार कर रहे थे। On the Wall Street's main indices advanced yesterday as signs of a working COVID-19 vaccine raised hopes of a faster than expected economic rebound. Though Dow Jones fell, technology stocks bounced back with steep losses this week. The Dow Jones Industrial Average fell 0.8%, while the S&P 500 gained 0.8% as well. The Nasdaq Composite Index climbed 2%. What's your view on the way the US and the world economy is moving quickly, Dr. Sharma? Yes, because now expectations are there that advanced economies will come out with the second wave of stimulus to address the slowdown caused by the coronavirus. So now the markets, global markets, are looking at the extent of the stimulus packages provided by the advanced economies in the coming times. So the markets will move accordingly, and the liquidity factors will be the main driver of the markets in the advanced economies as well as in the emerging markets. Moving on, the Brent crude prices today fell to trade below $44 per barrel. Oil prices depreciated, tracking weakness in the global equity market and concerns on rising COVID cases across the US and Europe. In intraday trade, Brent crude prices were trading around $43.60 per barrel, while WTI crude prices were around $41.20 per barrel. आइए चलें सर्राफा बाजार। दिल्ली सर्राफा बाजार में आज सोने की चमक फीकी रही है। सोने का मूल्य 81 रुपए घटा 50,057 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं चांदी अपने पूर्व स्तर पर ही टिकी रही। चांदी का मूल्य 62,037 रुपए प्रति किलो के अपने पूर्व स्तर पर जस का तस दिखा गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ध्यान दें तो सोने का मूल्य थोड़ा सा मजबूत हुआ। 1,870 डॉलर 20 सेंट प्रति आउंस के स्तर पर पहुंचा। चांदी $24.30 प्रति आउंस के स्तर पर बनी रही। और बस यहीं पर श्रोताओं की ओर से डॉक्टर शर्मा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। Thank you, Dr. Sharma, for being with us. And before we close, the headlines once again. Finance Minister Nirmala Sitharaman announces 12 key stimulus measures to boost the COVID-19 hit economy. Equity benchmarks snap 8 sessions winning rally. Sensex closes at 43,357. Nifty settles at 12,691. And the rupee weakens 27 paise against the US dollar. That's all we have in this edition of Market Mantra. Till tomorrow, goodbye. बड़े भैया इस कहावत को जरा एक्सप्लेन तो करिए कि आंख झपक जाए और अवसर बीत जाए। अरे छोटे, मतलब ये कि अगर आप निवेश करने के बाद उसे भूल जाएंगे तो उसे बेहतर बनाने के मौके आके चले जाएंगे। वो तो ये बात है। हाँ छोटे, निवेश के बाद उस पर निगरानी रखिए, आंखें मूंद कर सोते मत रहिए। बड़े छोटे, भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज NSE द्वारा निवेशकों के हित में जारी। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Market Mantra brought to you by National Stock Exchange. Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra.